کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سواری، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی مل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، اور ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کتنا خوش نصیب ہے، کسی کی نیک اولاد ہوتی ہے تو کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہے، لیکن دراصل قسمت کا دھنی ہے کون، یہ اس شعر میں بیان کیا ہے کہ دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے کہ دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، اور مقدر ہے سچا، مقدر اسی کا، مقدر ہے سچا، مقدر اسی کا، کہ نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جویر جزاک اللہ خیر۔ خواتین حضرات ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن اے ٹی وی اور اے پلس پر براہ راست۔ ہمارے علماء کرام کی موجودگی میں ہم جس موضوع کو چھیڑتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے طلب کرتے ہیں اور ہم بتائیں کہ اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں نے اس بات کی بہت، میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں نے جنہوں نے اس سیگمنٹ کو بہت سراہا ہے، انہوں نے کہا کہ بہت ہی کیجول اور بہت ہی نارمل انداز کے ساتھ بات ہوتی ہے، جس میں سوشل ایشوز کو اس طرح ایڈریس کیا جاتا ہے جیسے وہ میرے اور آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہوں۔ ہمارے ساتھ امجد بھائی اور ریحان قادری صاحب موجود، آپ دونوں کا السلام علیکم۔ میرے بہت محترم علماء کرام علامہ شبیر میسوی صاحب اور ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب، آپ دونوں کی شرکت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم حضرت، جزاک اللہ خیر۔ اچھا حضرت، آج پروگرام ذرا شروع کرتے ہیں تلاش گم شدہ کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو پہنچائیے، مل گئے ہیں؟ ویری گڈ۔ جن کو مل گئے ہیں وہ ذرا ساتھ ساتھ میرے ضرور پڑھیے گا بیٹے، سیگمنٹ سے پہلے ہی ڈسٹریبیوٹ کر دیا کرو تاکہ وہ لوگ ساتھ ساتھ پڑھ سکیں۔ تلاش گم شدہ برائے شکر گزاری ہے امجد بھائی، ریحان بھائی؟ برائے شکر گزاری، وہ شکر گزاری جس کے ہونے سے ضرورت کا سامان کم بھی ہو تو زیادہ بڑی بڑی مشکلیں، چھوٹی رزق میں برکت، عبادت میں لذت اور دلوں میں قرار ہوا کرتا تھا، اب گم شدہ ہو چکی ہیں۔ جس کی جگہ ناشکر پن، لالچ، حسد، دین سے دوری اور مال و زر کی حصول کے دوڑ نے لے لی ہے۔ جس کسی کو بھی وہ شکر گزاری کہیں مل جائے تو اس سے کہہ دے کہ خدا سے دور حرص و ہوس کی آگ میں جلتے لوگوں کے پاس لوٹ کر واپس آ جائے۔
वाह, शुक्र गुजारी। मुझे तो शुक्रगुजारी मिल गई। सब बहन भाई सब साथ मिलके कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे शुक्रगुजारी। बेशक। अल्लाह ताला को किसी खास स्टाइल की जरूरत नहीं है, बस आपने अल्लाह ताला के सामने कहा पालने वाले तेरी हर नेमत पर शुक्र अदा करते हैं और ये खुद ब खुद हमें मिलना शुरू हो जाएगी। असल में बच्चों की तरबियत में हम थोड़ा नाक़िस अमल करते हैं। अगर बच्चे को शुरू से दस्तरखान पे देखें, हदीस में है जो मासूम से नकल की गई है कि जब दस्तरखान बिछता है तो फरिश्ते एक तरफ आते हैं और शैतान के जो कारिंदे हैं दूसरी तरफ आते हैं। अगर खाना खाने वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खाना शुरू करता है, फरिश्ते कहते हैं मुबारक हो कि तूने अपने रब को याद किया, सुभान अल्लाह। और शैतान लान करके चला जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया तो फरिश्ते कहते हैं ए बंदे, जिस रब ने तुझे ये रोजी दी है तूने उसको याद तक नहीं किया। और शैतान के कारिंदे कहते हैं तूने बहुत अच्छा किया, तेरा खाना है तू खा और मजे कर। दस्तरखान समेटते वक्त देखें अखलाक इस्लामी में दस्तरखान के बहुत से आदाब हैं, उस पर मैं अभी नहीं जाता, लेकिन मेन अदब ये है। देखिए ना, अगर कोई मुझे पेंसिल भी देता है ना, मैं एक लफ्ज कहता हूँ थैंक यू। अभी मैं आ रहा था, मेरे ड्राइवर को एक और गाड़ी वाले ने कहा आप निकल जाइए, हालांकि कोई मैं ड्रेस में नहीं था, सिर्फ अखलाकन ठीक, मैंने दिल में उसका शुक्रिया अदा किया। चीज छोटी सी है, माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला कहता है तुम मेरी छोटी छोटी बंदों की छोटी छोटी चीजों पर शुक्र अदा करते हो। ये जो दस्तरखान तुम्हारा लगा हुआ है, अगर इस पे नेमतों को सिर्फ इसी पे नेमतों को गिनने जाओगे तो ये नेमतें गिन नहीं सकते हो। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरी नेमतें इतनी है कि तुम गिन नहीं सकते। लेकिन तुम इतना कर लो, जब तुम्हें एहसास हो कि ये नेमत मेरी तरफ से है, तुम शुक्र अदा कर लो, मैं तुम्हारे शुक्र को कबूल कर लूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, एक जुमला करता हूँ फिर मुफ्ती साहब भी तशरीफ रखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा पालने वाले तेरी इतनी नेमतें, मैं कैसे शुक्र करूंगा, मेरे लिए मुमकिन नहीं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा, तेरे दिल में ये एहसास कि तू मेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा शुक्र है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। डॉक्टर साहब, आपसे पिछले साल मुलाकात हुई थी और मुझे शर्फ हासिल हुआ कि एक बार फिर आपके साथ रूबरू हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक और शुक्र हो गया, एक और शुक्र। आप लोगों का आना ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों से सीखने को मिलना इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग अपनी दुआओं में याद रखते हैं, बहुत खुलूस से, मोहब्बत से, शफकत से मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये तो 3 महीने किस्मों अलग अलग अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जी जी, तो क्या शुक्र करने की भी इक़साम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा शुक्र की अक़साम इस एतबार से है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो वजूद अता फरमाया है, उसमें हमारे जो आज़ा हैं, उन आज़ा को भी अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्र का ज़रिया हमारे लिए बनाया हुआ है। मसलन एक हमारी ज़बान है, ज़बान अगर अल्लाह के ज़िक्र में तर रहती है तो ये भी शुक्र का एक तरीक़ा है। बेशक बेशक, कि उस अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की याद में हमेशा हम तस्बीह पढ़ते रहें, ज़िक्र करते रहें, उसे याद करते रहें, तन्हाई में भी, इज्तिमा में भी, ये भी अल्लाह का शुक्र है और ये ज़बानी शुक्र कहलाता है। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, अगर हम अपने पैरों से किसी अच्छे मुकाम की तरफ चल कर जाते हैं, इबादत के मुकाम की तरफ चल के जाते हैं, या कोई नेकी की जगह पर चल के जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए पैरों का शुक्रिया हो जाता है कि अल्लाह तूने हमें पैर दिए। इसी तरह अगर हाथ है हमारे, उससे हम कोई ऐसा नेक काम कर लेते हैं, खैर खैरात कर लेते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकी के कमाल को नहीं पहुँच सकते यहाँ तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करो। तो जब हम कोई चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो वो हमारे माल का शुक्रिया हो जाता है कि अल्लाह तूने हमें माल अता फरमाया, क्योंकि इंसान की जान, इंसान का माल, ये सब कुछ अल्लाह ताला की अमानत है, अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। इसीलिए तो आप देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तकरार फरमाई, कभी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कभी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाई है तकरार करके कि तुम किस किस नेमतों को, किन किन नेमतों को जुटलाओगे, क्योंकि तुम तो नेमतों की गिनती ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है ना। हम तो देखिए रात दिन में, नजर, आंख, हाथ, सब कुछ, आवाज, एक चीज, कदम, बिल्कुल, मतलब
हम तो पलक झपकते हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है। बेशक, हम सांसें ले रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला की बेशक, नेमत है, बेशक। जिनका हम शुमार कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने हमें वो नेमतें भी दी है जिनको हम एहसास जिनका रखते हैं, और वो नेमतें भी दी है जिनका हमें पता ही नहीं है। तो हमें तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मक़ूल है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। और शुक्र एक ऐसी नेमत है, मैं आपसे अर्ज करूं आपकी इजाजत से, जी सर। कि इसमें अल्लाह का शुक्र और बंदे का शुक्र, इन दोनों को जमा कर दिया गया है। कि एक तरफ बंदा उस रब्बे कायनात का शुक्र अदा करता रहे, खालिक कायनात का जिसने उसे पैदा किया है, और एक तरफ उसे तालीम दी गई है कि तुम बंदे का भी शुक्र अदा करो। क्योंकि शुक्रिया जो है, शुक्रगुजारी जो हमारा मौजू है, शुक्रिया का माना ये है कि जिसने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया तुम उसका शुक्र अदा करो। एक हदीस पाक है कि वो बंदा अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं है जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं। बंदा जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। यानी अगर बंदे ने हमारे साथ कोई अच्छाई की, नेकी की, तो हम उसका भी शुक्र अदा करें, शुक्रिया जिसको हम कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये सेगमेंट अभी जारी है। हमारे उलमाए कराम बहुत ही इस वक्त खूबसूरत और एहसन तरीके से जो ये गुफ्तगू हो रही है, आइए छोटे से वक्फे लेते हैं, और इस वक्फे के बाद जब वापस आए तो किसी एक चीज को जरूर देखकर या सोचकर या महसूस कर कर जरा शुक्र अदा कीजिएगा। अगर छोटी सी चोट भी लग जाती है तो निवाला पूरा नहीं बनता, तो जब निवाला पूरा बनता है तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं हम। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा, अभी वापस आते हैं।